Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to discuss the concept of default bail. पहले तो हम समझेंगे कि default bail होता क्या है और what is its nature, how it's granted, and if once it is granted, then how it's being dealt after that. Okay, so all of these things is what we are going to cover in this particular video. Before I start with the video, I want to share this information with you that we are starting a Pratigya batch for UPSC Law Optional Paper 2026. ये जो बैच है ये 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है जो 26 में अपना एग्जाम देंगे उनके लिए है. The batch will start from 17th of February 2025 from 5 p.m. The timings are Monday to Friday from 5 to 7. So hurry up if you have not joined the batch and if you have decided that you want to go for UPSC law optional paper, then this is the right time because it will take 7 to 8 months to finish the whole syllabus. And if you join now, then it will give you a lot of time to revise. At least you'll be able to revise twice or thrice before your mains examination, right? So this is the apt time to join it. Also, we provide counseling to our students. There is a link in the description box of this particular video. You go to that link, click on that link, it'll open a Google form, fill your information, and then our team will contact you. We have a team of experts who will help you with your counseling. If you have any question regarding your examination, your preparation, the strategy you should form, you will get all your answers in that counseling. So hurry up if you have not done it yet. Also, you should use my code HINA Live if you choose to purchase this batch. If you use my code, you will get more discount. You will get 10 to 20% discount more on the price which is available right now. Right. So this is it. And if you have any other question, you can contact us. Now let's start with the video. Section 187, subsection 3 of BNSS deals with default bail. Default bail per se word is not used under BNSS or before that in CRPC. Default bail एक ऐसी situation है जो create होती है because of some requirement which was not fulfilled. यानी कि कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो अगर टाइमली काम नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में जो अक्यूज्ड होगा उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी. तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो अक्यूज्ड की नहीं है. डिफॉल्ट जो अथॉरिटी है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी है और उसकी वजह से अक्यूज्ड की अब राइट अराइज हो गई है टू गेट बेल. अगर हम जो 2021 का सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है दैट इज फाकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड दैट डिफॉल्ट बेल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट. इट बिकम्स द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन. Section 167, subsection 2 of CRPC, which is the counterpart of 187, subsection 3 of BNSS, it provides that an accused is entitled to be released on bail if the charge sheet is not filed within 90 days or 60 days. तो जो डिफॉल्ट है वो यही है कि अगर टाइमली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की तो अक्यूज्ड के पास डिफॉल्ट बेल की राइट अराइज हो जाएगी. तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर डिले कर देती है इन्वेस्टिगेशन खत्म करने में और फिर चार्जशीट जमा करने में, देन द अक्यूज्ड विल हैव अ राइट. इट विल बिकम हिज राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड दैट राइट अकॉर्डिंग टू फाकरे आलम विल बी हिज फंडामेंटल राइट. तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता. इसका क्या मतलब है, अगर फंडा एक बार डिफॉल्ट बेल अराइज हो गई है, राइट अराइज हो गई है और कोर्ट डिफॉल्ट बेल ग्रांट करने से मना कर दे तो वो उस जो अक्यूज्ड है उसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगी. राइट. अब किस सिचुएशन में चार्जशीट कब कब जमा करनी है? दो क्राइटेरियाज हैं. अगर जो पुलिस है ऐसे ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर, 10 साल से ज्यादा के जो ऑफेंसेस हैं जिनमें 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिलती है या जिनमें डेथ पेनल्टी मिलती है, जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस है, उसको 90 days का टाइम मिलता है टू सबमिट चार्जशीट. अगर 90 days में चार्जशीट सबमिट नहीं होगी तो 91st डे द अक्यूज्ड विल हैव राइट ऑफ बेल. और अब वो उसकी मैटर ऑफ राइट है, उसकी फंडामेंटल राइट है. अब उसको बेल डिनाई नहीं की जाएगी भले ही वो अब एक नॉन बेलेबल ऑफेंस था, बिकॉज एज यू नो इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस द बेल इज at the discretion of the court. But if the investigating agency fails to submit charge sheet within 90 days, in case of offenses which are punishable with 10 years or more, in that situation, the accused will have a right of bail और वो उसकी default bail कहलाती है.
60 days फॉर ऑल अदर ऑफेंसेस। जो बाकी के ऑफेंसेस हैं, जो 10 साल से ऊपर के, 10 साल से कम के, जिनमें पनिशमेंट मिलती है, उस सिचुएशन में पुलिस को 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट को जमा करना होता है। अगर वो 60 डेज के अंदर चार्जशीट जमा नहीं कर पाते हैं, then the accused will have right of bail, and that is default bail. Because of the default of the investigating agency, the charge sheet was not submitted on time, and now the accused has right of bail, and that is what default bail is. This provision used to be in under section 167 subsection 2 of CRPC, but now भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये 187 subsection 3 में है, maintaining the same default bail provisions with minor wording changes. कुछ शब्दों में थोड़ा सा बदलाव है। अभी हम एक केस देखेंगे, उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वर्ड्स का जो बदलाव है, इससे इंटरप्रिटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ डिफॉल्ट बेल। There are four important key features. The first is mandatory right. If the charge sheet is not filed within the prescribed time, the accused must be granted bail upon application. अब accused की bail को deny नहीं किया जाएगा. It becomes its fundamental right. Now it's as a matter of right, the bail should be granted to him. Cannot be denied on merits. Once the accused applies for default bail and meets the conditions, courts must grant bail regardless of the nature of the offense. Granting a bail on merit का मतलब क्या होता है? जब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है, तो उसमें हमें मालूम है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट के डिस्क्रिशन पे बेल डिपेंड करती है। कोर्ट को अगर लगेगा आफ्टर हियरिंग द होल सिचुएशन, देन कोर्ट विल सी वेदर द बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट। तो मेरिट्स पे, मेरिट्स का मतलब है कि किस तरीके का ऑफेंस किया है, क्या अक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, या जो अक्यूज्ड है उसने किस तरीके से ऑफेंस किया है, क्या एलिगेशंस हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स, ये सारी चीजों को देखकर कोर्ट डिसाइड करती है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अक्यूज्ड, क्या वो इस पोजीशन में है कि विटनेस उसको थ्रेटन कर सकता है, एविडेंसेस को टैम्पर कर सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल ग्रांटिंग बेल इन नॉर्मल सिचुएशंस, राइट। इसको कहते हैं ग्रांटिंग बेल ऑन मेरिट, लाइक आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स कोर्ट ग्रांट्स बेल। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बेल, यहां पर कोर्ट मेरिट्स के ग्राउंड पर डिनाई नहीं करेगी। अगर एक बार जो सिचुएशन है वो अराइज हो गई है, इफ द चार्जशीट वाज नॉट सबमिटेड ऑन टाइम, देन the bail will be granted. The merits will not be taken into consideration. ठीक है, तो मेरिट्स में देखे जाएंगे क्या ऑफेंस था, कैसे किया था, अक्यूज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या नहीं है, क्या क्या स्टेटस है। नथिंग विल बी सीन इफ once the default bail time has arisen, he will be given the bail. Irrevocable once granted. Once default bail is granted, it cannot be cancelled unless the accused violates bail conditions or on merits. At the time of granting the default bail, court will not look into the merits of the case. वो तो उसका right arise हो गया है, देना ही होगा। But bail, जब आप default bail भी दे रहे हो, तो उसमें कुछ conditions होती हैं, उसमें भी लिखी जाएंगी कि भाई आप witnesses को आप threaten नहीं करोगे, आप evidences को tamper नहीं करोगे, ऐसी बहुत सारी conditions लगाई जाती हैं। अगर वो कंडीशंस का वायलेशन को अगर अक्यूज करता है, देन इन दैट सिचुएशन द बेल विल बी ग्रांट कैंसल्ड। जो डिफॉल्ट बेल मिली है वो कैंसिल हो जाएगी। या लेटर ऑन अगर कोई ऐसे ग्राउंड्स आ गए हैं जिसको देखकर कोर्ट को लगता है कि नो, द बेल शुड बी कैंसल्ड हियर फॉर द पर्पज ऑफ फेयर ट्रायल, देन द बेल कैन बी कैंसल्ड। अदरवाइज वंस अ डिफॉल्ट बेल इज ग्रांटेड, देन इट कैन नॉट बी रिवोक्ड लाइक दैट। देयर हैज टू बी स्पेशल रीजन फॉर कैंसिलिंग दैट बेल। No automatic bail. The accused must apply for bail. It is not granted automatically. Now this is another thing. इसकी वजह से बहुत सारे जो accused है, because of lack of legal awareness, वो under trials उनको पता भी नहीं होता है कि चार्जशीट भी उनकी जमा नहीं हुई है, and still they are being held. वो अभी भी under trial है, जेल में बंद है, उन्हें मालूम नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक बेल नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं है कि अच्छा ऐसा भाई इनकी चार्जशीट नहीं आई है, 60 दिन पूरे हो गए, 90 डेज पूरे हो गए, इनको बेल दो। नो, इट्स द अक्यूज्ड हु हैज टू कम फॉरवर्ड एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल, and then after considering and seeing that okay, charge sheet is not filed within, court will grant bail, but it is the duties on the accused to bring forward his application for bail. रीसेंट चेंजेस क्या है? रीसेंट चेंजेस सिर्फ कुछ शब्दों के हैं, कुछ वर्ड्स हैं। बीएनएस 2023 बोलता है सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 रिप्लेसेस सीआरपीसी सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 विद सिमिलर प्रोविजन। द फ्रेज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 years इज चेंज्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years और मोर। तो 90 डेज की सिचुएशन में पहले ये लिखा जाता था कि इम्प्रिजनमेंट विच इज नॉट लेस देन 10 years, यानी कि 10 साल
या उससे ऊपर, अब उसको रिप्लेस करके इस तरीके से लिखा गया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years और मोर। तो रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट का केस है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कलंदर शाफी। It ruled that this change is only a play of words, meaning the law remains unchanged. तो सिंपल है, 10 साल से ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं, विच इंक्लूड्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी, उन ऑफेंसेस में 90 days है चार्जशीट जमा करने के लिए, और 10 साल से जो कम के ऑफेंसेस हैं उसमें 60 दिन है चार्जशीट जमा करने के लिए। अगर पुलिस चार्जशीट टाइमली जमा नहीं करेगी तो अक्यूज्ड के पास डिफॉल्ट बेल की राइट अराइज हो जाएगी, और उसी को अप्लाई करना होगा इन द कोर्ट दैट ओके द चार्जशीट वाज नॉट फाइल्ड, स्टैट्यूटरी पीरियड इज ओवर, now I have a right of default bail, and now it, of course, it is also a fundamental right, so court cannot deny it also, right? So these are the points regarding default bail. I hope that you learned something new, and if you have any question regarding default bail or other any other kind of bail or anything regarding bail, then please ask, and I'll be very happy to answer those questions. So thank you so much for watching. Keep learning.